Very good evening, friends. Today we will discuss the Real Estate Regulation and Development Act 2016, and if time permits, then we will discuss the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act also. But our focus will be on RERA. If we can finish it early, then it's okay. There are certain specified sections only in RERA. We don't have to read the entire code. So these are the only sections which we are required to read. On the exam day, you will get time to just read this index only. So you make notes accordingly on this paper itself. Okay, what is important in these sections? Section 2. Section 2 talks of the definitions. Naturally, in almost all of the acts, section 1 generally refers to the extent of application and section 2 refers to definitions, except in some cases where section 3 covers definitions. Relevant definitions are covered under section 2 of the act, which are as follows. We have covered only some of the definitions. First is the adjudicating officer. So adjudicating officer means the adjudicating officer appointed under subsection 1 of section 17, which we will read later. Advertisement. Advertisement means any document described or issued as advertisement. अब इस डेफिनेशन को आप प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन से मिला के पढ़िए, वैसी कुछ डेफिनेशन है. जैसे वहां पर भी क्या है कि प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस. ठीक है. थ्रू एनी मीडियम एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट और पब्लिसिटी इन एनी फॉर्म informing persons about a real estate project or offering for sale of a plot, building or apartment, or inviting persons to purchase in any manner such plot, building or apartment, or to make advances or deposits for such purposes. ये एडवर्टाइजमेंट किसी भी मीडियम से हो. ठीक है. इवन एसएमएस भी जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है. तो एडवर्टाइजमेंट any document described or issued as advertisement through any medium, includes any notice, circular or other documents or publicity in any form. ठीक है. और उसमें होना क्या चाहिए? Informing persons about a real estate project or offering for sale of a plot, building or apartment, or inviting persons to purchase in any manner such plot, building or apartment, or to make advances or deposits for such purposes. तो इस कामों के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट. डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मीडिया, नोटिस हो, सर्कुलर हो, डॉक्यूमेंट हो, भाई प्लॉट ले लो, बिल्डिंग ले लो, अपार्टमेंट ले लो, एडवांस दे दो. ठीक है. सेल के लिए प्लॉट ऑफर किए जा रहे हैं. ये सारी चीजें एडवर्टाइजमेंट में आती हैं. एग्जाम्पल, डज एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड सॉलिटिशन बाय ईमेल, ईमेल पे भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, सोशल मीडिया पे भेज दिया, एसएमएस पे भेज दिया. ठीक है. इज इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस कंसिडर्ड टू बी ए केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट? आंसर कहता है एनी मीडियम adopted in soliciting for sale would be covered under the said definition or advertisement, including SMS, WhatsApp, social media and emails. ठीक है. फिर एग्रीमेंट फॉर सेल का क्या मतलब है? एग्रीमेंट फॉर सेल मीन्स एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द प्रमोटर एंड द अलॉटी. यहाँ पर तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है रेरा में. एक तो है प्रमोटर, एक है अलॉटी और एक है रियल एस्टेट एजेंट. यही तीनों चीजें, तीनों बेसिकली एजेंट्स हैं जो काम करते हैं चेन में. ये तीन लोग ही प्रोमिनेंट होते हैं. एक तो प्रमोटर होता है जो बनाता है, बिल्डर, प्रमोटर कह लो, बिल्डर कह लो. एक होता है अलॉटी जिसने प्लॉट लेना है, और तीसरा होता है मिडल मैन जिसको रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं. ठीक है ना. तो एग्रीमेंट फॉर सेल मीन्स एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन द प्रमोटर एंड द अलॉटी. एग्रीमेंट फॉर सेल में दो पार्टीज, प्रमोटर और अलॉटी. अलॉटी का क्या मतलब है? अलॉटी इन रिलेशन टू अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट means the person to whom a plot, apartment or building, as the case may be, has been allotted, sold, whether as freehold or leasehold, or otherwise transferred by the promoter, and includes the person who subsequently acquires. तो मतलब second sale भी cover हो गई इसमें. Who subsequently acquires the said allotment through sale, transfer or otherwise, but does not include a person to whom such plot,
अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में भी इज गिवन ऑन रेंट। ठीक है, अगर किसी को रेंट पर दिए तो वो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी अलॉटी में फर्स्ट सेल भी और सेकंड सेल भी दोनों कवर्ड है। ठीक है, बाकी सब अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अलॉटी इन रिलेशन टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, द पर्सन टू whom a plot, apartment or building as the case may be has been allotted, sold, whether as freehold or leasehold or otherwise transferred by the promoter. ठीक है, includes the person who subsequently acquired the said allotment through sale, transfer or otherwise. और क्या इंक्लूड नहीं है? इट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन टू whom such plot, apartment or building as the case may be is given on rent. ठीक है, रेंट के अलावा सेल है, ट्रांसफर है, अदरवाइज ट्रांसफर है, सब चीजें इंक्लूड है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, सब इंक्लूडेड है। एग्जांपल में क्या है? डज द टर्म अलॉटी इंक्लूड पर्संस हु हैव एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी थ्रू सेकेंडरी सेल्स? यस, तो इट इंक्लूड्स सेकंड सेल आल्सो। अपार्टमेंट क्या है? अपार्टमेंट उसको चाहे ब्लॉक कहो, चाहे चैम्बर कहो, चाहे ड्वेलिंग यूनिट कहो, फ्लैट कहो, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोडाउन, प्रीमिसेस, सूट, टेनेमेंट, यूनिट और बाय एनी अदर नेम। ठीक है, इसका मतलब ये है, मीन्स ए सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन्ड पार्ट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, including one or more rooms or enclosed spaces located on one or more floors or any part thereof in a building or on a plot of land used or intended to be used for any residential or commercial, ठीक है, use such as residence, office, shop, showroom, godown, or for carrying on any business, occupation, profession or trade, or for any other type of use ancillary for the purposes specified। अपार्टमेंट में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। जरूरी नहीं कि रेजिडेंशियल पर्पस हो, बिजनेस पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एनक्लोज्ड स्पेसेस है। ठीक है, ये अपार्टमेंट में बात करता है, प्लॉट अलग से बात कर रहा है। ठीक है ना, प्लॉट अलग आएगा डेफिनेशन, और ये अपार्टमेंट की बात कर रहा है। एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है? एपेलेट ट्रिब्यूनल में द रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 43। फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट विदाउट लेजिस्लेचर। कई जगह क्या है कि लेजिस्लेचर अलग से है, ठीक है ना, कई जगह नहीं है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इसमें आ रही है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट आ रही है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल मिनिस्ट्री, ये सारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। इट मीन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू ये। ठीक है, आर्किटेक्ट कौन है? आर्किटेक्ट वो है, इज ए पर्सन रजिस्टर्ड एज एन आर्किटेक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। अथॉरिटी रेरा, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर और इरेक्शन और ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और इरेक्शन विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ठीक है, बिजनेस, किसी भी पर्पस के लिए। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया में मेन बात क्या ध्यान रखनी है आपको? कारपेट एरिया में अंदर की दीवारें तो आएंगी, घर के अंदर की दीवारें, ठीक है, जो इंटरनल पार्टीशन वॉल है, लेकिन जो बाहर की दीवारों के बाहर वाला एरिया वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो सीढ़ियां हैं वो नहीं आएंगी, बालकोनी अगर चाहे एक्सक्लूसिव बालकोनी हो वो भी नहीं आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कारपेट एरिया, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, एरियाज अंडर सर्विस शाफ्ट्स, exclusive balcony or veranda area and exclusive open terrace area but includes the area covered by the internal partition walls of the apartment। ठीक, अपार्टमेंट में क्या होता है नॉर्मली भाई, चाबी लगा के हम घुसते हैं, उसके अंदर ही होता है सब कुछ, ठीक है ना, तो अंदर की जो भी एरिया है वो सारा उसमें कारपेट एरिया में आता है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, द एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव बालकनी और वेरांडा एरिया means the area of the balcony or veranda as the case may be which is appurtenant to the net usable floor area of an apartment meant for the exclusive use of the allottee। ठीक है, and exclusive open terrace area means the area of open terrace which is appurtenant to the net usable floor area of an apartment meant for the exclusive use of the allottee। तो चाहे exclusive use के लिए फिर भी वो कारपेट एरिया में नहीं आ रहा, ठीक है, जो बालकनी या वेरांडा एरिया वो एक्सक्लूडेड है इसमें। ठीक है,
सिर्फ इंटरनल वॉल्स वाला एरिया वो इंक्लूडेड है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन ऑफ रेरा, ठीक है। आगे देखते हैं। commencement certificate. Commencement certificate means the certificate. Commencement certificate means, एक मिनट, इसको commencement certificate means the commencement certificate or the building permit or the construction permit by whatever name called, issued by the competent authority to allow or permit the promoter to begin development works on an immovable property as per the sanctioned plan. ये commencement certificate है। इसमें ना 2-3 सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है commencement certificate, एक होता है completion certificate, ठीक है ना। तो वो सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। commencement certificate मतलब क्या है? commencement certificate और द बिल्डिंग परमिट और द कंस्ट्रक्शन परमिट, ठीक है, कि भाई आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो, आपको अलाउ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, ये है commencement certificate। टू अलाउ और परमिट द प्रमोटर टू बिगिन डेवलपमेंट वर्क्स, ठीक है, ये शुरुआत है commencement certificate। फिर कॉमन एरियाज कौन से हैं? द एंटायर लैंड फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और वेयर द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड इन फेजेस एंड रजिस्ट्रेशन इज सॉट फॉर अ फेज, द एंटायर लैंड फॉर दैट फेज। अगर फेज वाइज डेवलपमेंट होना है तो एक पर्टिकुलर फेज में जो लैंड है, और अगर पूरा एंटायर एरिया डेवलप होना है तो पूरा एंटायर, वो सारा जो है, एक तो एंटायर लैंड उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। स्टेयर केसेस, लिफ्ट, स्टेयर केस एंड लिफ्ट लॉबीज, फायर एस्केप, कॉमन एंट्रेंस, ये सारे कॉमन एरियाज में आ जाएंगे। कॉमन बेसमेंट, टेरेसेस, पार्क्स, प्ले पार्क, ठीक है, ये सारा। इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, सैनिटेशन वगैरह, वाटर टैंक्स, सम पंप्स, मोटर्स, फैंस, कंप्रेसर डक्ट्स, ये सारे जो चीजें हैं ये सारी कॉमन एरियाज में आ रही हैं आपकी, ठीक है। All community and commercial facilities as provided in the real estate project and all other portions of the project necessary or convenient for its maintenance, safety and in common use. एग्जाम्पल में क्या है कि इज ओपन पार्किंग एरिया ए पार्ट ऑफ कॉमन एरिया, ठीक है। तो सेक्शन 2(n) में इट डिफाइंस कॉमन एरियाज टू इंक्लूड ओपन पार्किंग एरिया, तो जो ओपन पार्किंग एरिया है वो उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इज कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज दे आर पार्ट ऑफ कॉमन एरिया, ठीक है। तो जो कम्युनिटी और जो कमर्शियल फैसिलिटीज हैं दे आर पार्ट ऑफ द कॉमन एरिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें आती है एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, ठीक है, क्योंकि जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं भाई, उनकी तो अलग से रजिस्ट्री हो जाती है, कुछ कॉमन एरियाज है उसको हैंडओवर करना पड़ता है एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को, ठीक है। फिर कंपनी क्या है? कंपनी मींस, इसको आरडब्ल्यूबी कहते हैं। कंपनी मींस ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंक्लूड्स ए कॉर्पोरेशन, ए डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी कंपनी के अंदर आती हैं। कंपिटेंट अथॉरिटी क्या है? Competent authority means the local authority or any authority created or established under any law for the time being by the appropriate government which exercises authority over land under its jurisdiction, ठीक है। क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या होता है कि हर एक का अपना अपना डेवलपमेंट होता है। जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है बहुत सारी, ठीक है ना, हर नॉर्मली स्टेट वाइज होती है या कई बार सिटी वाइज भी होती है। तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो लोकल अथॉरिटी या जो एस्टेब्लिश्ड है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ ली, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेचर सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर पहले हमने पढ़ा था कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या था? वो शुरुआत थी। ये है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मीन्स द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और सच अदर सर्टिफिकेट by whatever name called issued by the competent authority certifying that the real estate project has been developed according to the sanctioned plan, layout plan and specifications as approved by the competent authority under the local law। तो ये completion certificate है, ठीक है, कि भाई जो सेक्शन प्लान था, जो लेआउट था, जो स्पेसिफिकेशन थी, उसके हिसाब से ये प्लान जो है डेवलप हुआ है और अप्रूव हुआ है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट। डे क्या है? डे मीन्स द वर्किंग डे इन द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में आ जाएगा कैरिंग आउट डेवलपमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग और अदर ऑपरेशंस, चाहे लैंड के अंदर हो चाहे ऊपर हो, ठीक है, इन, ऑन, ओवर और अंडर द लैंड, ठीक है, और द मेकिंग ऑफ एनी मटेरियल चेंज इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और लैंड एंड इंक्लूड्स रीडेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट में ही है। और डेवलपमेंट वर्क्स क्या है? डेवलपमेंट वर्क्स मीन्स द एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स
एंड इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो डेवलपमेंट वर्क में दोनों चीजें इंक्लूडेड है। इंजीनियर कौन है? इंजीनियर में ये है कि जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो AICTE से रिकॉग्नाइज्ड है या यूनिवर्सिटी या एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, अंडर एज एन इंजीनियर, तो वो इंजीनियर है। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट में टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, लैंड कॉस्ट भी है, टैक्सेस भी है, सेस भी है, डेवलपमेंट एंड अदर चार्जेस। एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स क्या है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स हैं जैसे रोड या रोड सिस्टम्स, लैंडस्केपिंग, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। फैमिली में कौन कौन इंक्लूडेड है? फैमिली में हस्बैंड वाइफ, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। हस्बैंड, वाइफ, माइनर सन, अनमैरिड डॉटर, होली डिपेंडेंट ऑन ए पर्सन। तो यही चीजें इसमें इंक्लूडेड है, बाकी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मेजर सन होगा तो इंक्लूड नहीं है, मैरिड डॉटर वो भी इंक्लूडेड नहीं, अनमैरिड डॉटर भी वही इंक्लूडेड है जो होली डिपेंडेंट ऑन ए पर्सन, ठीक है, अदरवाइज तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रहेगा या माइनर सन। गैरेज, गैरेज मीन्स अ प्लेस within a project having a roof and walls on 3 sides for parking any vehicle but does not include an unenclosed or uncovered parking space such as open parking area। तो ओपन पार्किंग एरिया अलग है, गैरेज अलग है। गैरेज मतलब 3 साइड से कवर्ड है, ठीक है, लेकिन जो ओपन पार्किंग एरिया वो तो अनकवर्ड ही होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या है? इट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, राइट ऑफ वेज, लाइट्स और अदर बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये सारा, लेकिन इसमें स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप्स या ग्रास इंक्लूडेड नहीं है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट में भी डेफिनेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, राइट्स ऑफ वेज, लाइट्स और एनी अदर बेनिफिट, ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग क्रॉप्स और ग्रास। इंटरेस्ट का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय द प्रमोटर और द अलॉटी एज द केस में। इसमें एक खासियत है कि जितना प्रमोटर को देना होगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट उतना ही अलॉटी को देना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द अलॉटी बाय द प्रमोटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट शैल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट which the promoter shall be liable to pay to the allotee in case of default। तो जितना प्रमोटर अलॉटी को देगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट उतना ही अलॉटी देगा प्रमोटर को इन केस ऑफ डिफॉल्ट। दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट पेएबल बाय द प्रमोटर टू द अलॉटी शैल बी फ्रॉम द डेट द प्रमोटर रिसीव्ड द अमाउंट और पार्ट देयरऑफ टिल द डेट द अमाउंट और पार्ट देयरऑफ और इंटरेस्ट देयरऑन इज रिफंडेड, ठीक है, जब से रिसीव से लेके रिफंड की डेट तक, ठीक है। और इंटरेस्ट जो पेएबल बाय द अलॉटी, अलॉटी कैसे पेमेंट करेगा? इट विल बी फ्रॉम द डेट द अलॉटी डिफॉल्ट्स इन पेमेंट टू द प्रमोटर टिल द डेट इज पेड, ठीक है। कोई शेड्यूल ऑफ पेमेंट होता है। अब शेड्यूल ऑफ पेमेंट में मान लो उसने दिया भी 15 मार्च को आपको पेमेंट करनी है, अलॉटी ने 15 अप्रैल को पेमेंट की, तो 1 महीने का इंटरेस्ट देगा। इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स, पहले हमने पढ़ा एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क, अब ये है इंटरनल डेवलपमेंट। इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स है मींस रोड्स, फुटपाथ्स, वाटर सप्लाई, सीवर्स, ड्रेन पार्क्स, ट्री प्लांटिंग, ठीक है, इन ए प्रोजेक्ट फॉर इट्स बेनिफिट एज पर सैंक्शन प्लान, ठीक है। इसके मुकाबले में हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स को देखते हैं। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क क्या है? देखो ये भी है, ये क्या है? ये पेरिफेरी में है। फर्क क्या है? चीजें दोनों में सेम है, इसमें भी रोड्स हैं, रोड सिस्टम है, सब कुछ इसमें भी सेम है, लेकिन ये है पेरिफेरी में या आउटसाइड है प्रोजेक्ट, मतलब जो उसकी बाउंड्री के बाहर की बात है। इंटरनल में क्या है? ये अंदर की बात है, ठीक है ना, ये अंदर में है। इन ए प्रोजेक्ट फॉर इट्स बेनिफिट एज पर सैंक्शन, दोनों में यही फर्क है, बाकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। लोकल अथॉरिटी मीन्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और द म्युनिसिपैलिटी और पंचायत और एनी अदर लोकल बॉडी constituted under any law for the time being in force for providing municipal services or basic services as the case may be in respect of areas under its jurisdiction, ठीक है। मेंबर ऑफ रेरा, मेंबर का मतलब यहाँ मेंबर ऑफ रेरा है, और चेयरपर्सन भी इंक्लूडेड है मेंबर में, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता है। नोटिफिकेशन मीन्स a notification published in the official gazette and the expression notified shall be construed accordingly। एक तीसरी डेफिनेशन आ गई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। एक हमने पढ़ा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, एक हमने पढ़ा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अब आ गया ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मीन द सर्टिफिकेट
or by whatever name called, issued by the competent authority, permitting occupation of any building as provided under local laws, which has provision for civic infrastructure such as water, sanitation and electricity. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दे सकते. ऑक्यूपेंसी से पहले वहां पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए और सैनिटेशन की सुविधा होनी चाहिए. वो होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. ठीक है, तीन सर्टिफिकेट हमने पढ़े: कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. एग्जाम्पल, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में क्या फर्क है? ठीक है ना. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? परमिटिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग विच हैज प्रोविजन फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर. भाई पानी है, बिजली है, सैनिटेशन है एंड इज हैबिटेबल, मतलब रहने लायक है वो, तो तब तो होगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इट रिलेट्स टू द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट. ये एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा है. ठीक है ना. certifying that the project has been developed according to the sanction plan, layout and specifications as approved by the competent authority. पर्सन में क्या इंक्लूडेड है? पर्सन में इंक्लूडेड है जी हमारे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, competent authority, AOP, BOI, cooperative society, any other entity. प्लानिंग एरिया. प्लानिंग एरिया क्या क्या मतलब है? प्लानिंग एरिया मीन्स ए प्लानिंग एरिया और ए डेवलपमेंट एरिया और ए लोकल प्लानिंग एरिया और ए रीजनल डेवलपमेंट प्लान एरिया बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और एनी अदर एरिया स्पेसिफाइड और डेजिग्नेटेड, ठीक है, टू बी ए प्लानिंग एरिया फॉर फ्यूचर प्लान्ड डेवलपमेंट अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, तो ये प्लानिंग एरिया. फिर प्रेस्क्राइब बाय रूल्स. प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट. प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर वो है जो हु कंस्ट्रक्ट्स और कॉजेज टू बी कंस्ट्रक्टेड एन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग और ए बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स और कन्वर्ट्स एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और ए पार्ट देयरऑफ इनटू अपार्टमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ऑल और सम ऑफ द अपार्टमेंट्स टू अदर पर्संस एंड इंक्लूड्स हिज असाइनीज. तो प्रोमोटर की डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. दूसरा, ए पर्सन हु डेवलप्स लैंड इनटू ए प्रोजेक्ट. पहला क्या कर रहा है? एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है पहले वाले में. ठीक है. दूसरे में क्या कर रहा है? लैंड को डेवलप कर रहा है इनटू ए प्रोजेक्ट वेदर और नॉट द पर्सन आल्सो कंस्ट्रक्ट्स स्ट्रक्चर्स ऑन एनी ऑफ द प्लॉट्स. ठीक है, खाली लैंड डेवलपमेंट कर दी तो भी प्रोमोटर में आ जाएगा. ठीक है, चाहे कंस्ट्रक्शन नहीं भी करी उसने. ठीक है, whether or not the person also constructs structures on any of the plots for the purpose of selling to other persons all or some of the plots in the said project whether with or without structures thereof. बहुत सारे क्या होते हैं, लैंड डेवलप करके जमीन काट देते हैं जैसे जमींदार. ठीक है ना, तो वो भी प्रमोटर में आ जाएगा कि भाई आप अपने हिसाब से बना लो नक्शा पास करवा के. Any development authority or any other public authority in respect of allottees of buildings. तो ये तो हो गया इंडिविजुअल. पहले दो तो इंडिविजुअल हो गए, ये पर्सन आ गया इसमें. तीसरे में आ गया एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी. ठीक है, भाई डीडीए है या और हुडा है, ऐसे बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, तो वो भी तो डेवलपमेंट करते हैं ना, तो वो इसमें कवर हो जाएंगे. ठीक है. एंड एपेक्स स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. ठीक है, वो भी इसमें कवर्ड है. एनी अदर पर्सन जो हु एक्ट्स हिमसेल्फ एज ए बिल्डर, कॉलोनाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर, एस्टेट डेवलपर और बाय एनी अदर नेम और क्लेम्स टू बी एक्टिंग एज द होल्डर ऑफ ए पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द ओनर ऑफ द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग और अपार्टमेंट इज कंस्ट्रक्टेड और प्लॉट इज डेवलप्ड फॉर सेल. बेसिकली ये डीमिंग सेक्शन है जो 5 है. तो इसमें क्या है कि वो बिल्डर की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, या वो कहता है कि मेरे पास ओनर से पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो भी इसके अंदर प्रोमोटर के अंदर शामिल हो जाएगा. सच अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स एनी बिल्डिंग और अपार्टमेंट फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक. तो ये प्रोमोटर की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, वेयर ए पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स और कन्वर्ट्स ए बिल्डिंग्स इनटू अपार्टमेंट्स और डेवलप्स ए प्लॉट फॉर सेल एंड द पर्सन हु सेल्स अपार्टमेंट, दोनों अलग अलग है. जिसने प्लॉट डेवलप किया वो अलग है, जो सेल कर रहा है वो अलग है, तो दोनों ही प्रोमोटर माने जाएंगे. ठीक है, देन दे विल बी जॉइंटली लायबल एज सच. ठीक है.
ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई प्रमोटर में क्या पब्लिक बॉडीज भी इंक्लूडेड हैं, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज और हाउसिंग बोर्ड? यस, इट इंक्लूड्स both private and public real estate promoters. Thus, both development authorities and the housing boards, when involved in sale, they are counted in the act. Prospectus क्या है? Prospectus एक हमने एडवर्टाइज पढ़ी थी, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी पहले? हमने पढ़ी थी डेफिनेशन एडवर्टाइजमेंट की। यहाँ पर क्या है? ये प्रोस्पेक्टस है। तो प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस और एनी नोटिस, सर्कुलर और अदर डॉक्यूमेंट ऑफरिंग फॉर सेल of any real estate project or inviting any person to make advances or deposits for such purposes. तो इस डेफिनेशन को आप एडवर्टाइजमेंट के डेफिनेशन के साथ मिला के पढ़ें, सिमिलर सी है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में डॉक्यूमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली इन्विटेशन है फॉर इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट एजेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि यही ब्रिज है बिल्डर और अलॉटी के बीच में। तो रियल एस्टेट एजेंट और रियल एस्टेट एजेंट वही है जो रेरा में रजिस्टर्ड है, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट मीन्स एनी पर्सन हु नेगोशिएट्स और एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ वन पर्सन इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हिज प्लॉट, अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में बी इन ए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बाय वे ऑफ सेल विद अनदर पर्सन और ट्रांसफर ऑफ प्लॉट अपार्टमेंट, ठीक है, एंड रिसीव्स रिम्यूनरेशन और फीस और एनी अदर चार्जेस फॉर हिज सर्विसेज, चाहे उसको कमीशन मिले या कुछ और मिले, एंड इंक्लूड्स ए पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस through any medium prospective buyers and sellers to each other for negotiation for sale or purchase as the case may be, and includes property dealer, brokers, middlemen, by whatever name called. तो ये सारे रियल एस्टेट एजेंट में आते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है? रेरा में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी चीजें हैं वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर प्रोजेक्ट भी रजिस्टर्ड नहीं है रियल एस्टेट, तो यहाँ पर फिर उसका आपको बेनिफिट कोई नहीं मिल सकता, आप ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, ठीक है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है? मींस द डेवलपमेंट ऑफ ए बिल्डिंग और ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स और कन्वर्टिंग, फिर आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, और कन्वर्टिंग एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और ए पार्ट देयर ऑफ into apartments or the development of land into plots or apartments as the case may be, for the purpose of selling all or some of the said apartments or plots or buildings as the case may be, and includes the common areas, development works, all improvements and structures thereon, and all easements, rights and appurtenances belonging thereto. क्या मतलब? तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में क्या है? ये डेवलपमेंट है बिल्डिंग या बिल्डिंग्स की, ठीक है, जिसमें अपार्टमेंट होंगे, या एग्जिस्टिंग को आपने कन्वर्ट करना है, या लैंड को प्लॉट में कन्वर्ट करना है, या अपार्टमेंट्स में करना है, फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, चाहे सारे बेचने हो या सम ऑफ द प्लॉट्स बेचने हो, ठीक है। और तो ये सारी चीजें इसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में आती हैं। रेगुलेशंस मींस द रेगुलेशंस मेड बाय द अथॉरिटी अंडर द सेट, तो रूल्स मेड बाय द अथॉरिटी। फिर सैंक्शनड प्लान, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि सैंक्शन प्लान का मतलब क्या है? सैंक्शन प्लान मींस द साइट प्लान, बिल्डिंग प्लान, सर्विस प्लान, पार्किंग एंड सर्कुलेशन प्लान, landscape plan, layout plan, zoning plan, and such other plan, and includes structural designs if applicable, permissions such as environmental permission and such other permissions which are approved by the competent authority prior to start of a real estate project, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन, ये तो हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ ली। उसके बाद में एप्लीकेशन आ जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कि जो भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रमोटर डेवलप कर रहा है उसको अप्लाई करना है रेरा को। तो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बाय द प्रमोटर। अब रेरा एक पर्टिकुलर डेट को आया था, तो जब ये आया रेरा, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस टाइम तक, सबको टाइम दिया गया कि भाई इतने पीरियड में आप इसको रजिस्टर करा लो रेरा में, ठीक है। हर एक के लिए वहां पर एक यूजर आईडी दिया गया है, और रेरा की वेबसाइट पर सारी चीजें फिर अपलोड होती हैं। पहले पता ही नहीं चलता था, कोई प्रोजेक्ट है उसका सैंक्शन प्लान अप्रूव हुआ है नहीं हुआ, लेआउट प्लान अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, उसकी ओनरशिप है, वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करते हैं और कोई भी उनको देख सकता है, ठीक है। जो अलॉटी है उसको भी यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एवरी प्रमोटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब रेरा यहाँ पर, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसको एप्लीकेशन के साथ क्या क्या पर्टिकुलर्स लगाने हैं, ठीक है। अब पहले तो अपना बताएगा, अपनी जन्म पत्री बताओ, आपका नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, प्रोपराइटर हो, पार्टनर हो, कंपनी हो, क्या हो, ठीक है। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द नेम्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रमोटर, ठीक है। पहला तो आइडेंटिटी से रिलेटेड है।
दूसरा ये कि काम क्या करोगे, ए ब्रीफ डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड बाय हिम इन द पास्ट 5 years। पहले 5 सालों में आपने क्या किया, पहले अब अपना इतिहास बताओ। ठीक है भाई, कंप्लीट हो चुके, नहीं कंप्लीट हुए, किस स्टेज पे हैं, कोई डिले हुआ है था क्या, अगर कोई केसेस चल रहे हैं क्या, डिटेल्स ऑफ टाइप ऑफ लैंड एंड पेमेंट्स पेंडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पिछले 5 साल में आपने काम किया वो बताओ, हिस्ट्री। तीसरा, ऑथेंटिकेटेड कॉपी दो अप्रूवल की, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की फ्रॉम दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है ना, कि भाई काम करने की शुरुआत करनी है। ऑब्टेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एज में बी एप्लीकेबल फॉर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। और अगर फेजेस में करना है तो हर फेज के लिए आप बताओ, ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट है आपके पास, क्या क्या अप्रूवल है। फिर जो सेंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, प्लान ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको बतानी है, क्या क्या काम आप करोगे उसमें। फिर लोकेशन डिटेल्स बताओ, रियल क्लियर डिमार्केशन होगा, लैंड डेडिकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। फिर परफॉर्मा ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि क्या होता है कि अलॉटमेंट लेटर भी अलग अलग फॉर्मेट्स में बिल्डर पहले इशू करते रहते थे, बाद में पता चलता था ये तो अलॉटमेंट लेटर ही नहीं है, ये तो कुछ और है। तो परफॉर्मा भी आप दो यहाँ पर, एग्रीमेंट फॉर सेल क्या दोगे वो भी दो, कन्वेंस डीड दो यहाँ पर, प्रपोज टू बी साइंड बाय द अलॉटिंग, सारी चीजें यहाँ पर आप फॉर्मेट दो, परफॉर्मा दो सबका। ठीक है, नंबर, टाइप एंड द कारपेट एरिया ऑफ द अपार्टमेंट्स फॉर सेल इन द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द एरिया ऑफ द एक्सक्लूसिव बालकनी और वरांडा एरिया एंड द एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया अपार्टमेंट विद द अपर टेनेंट इफ एनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देनी है। फिर नंबर एंड एरिया ऑफ गैरेज फॉर सेल, नेम एंड एड्रेस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, आपने अगर कोई एजेंट अपॉइंट किए हैं तो उनका भी डिटेल देना है आपको। ठीक है, अदरवाइज पहले प्रोजेक्ट में क्या होता था, कौन एजेंट है कुछ पता नहीं चलता था, वो कहता था बात भी है तो मेरा एजेंट ही नहीं है। तो आपके जो भी नाम है और एड्रेस उनके देने हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स के, अगर आपने कोई अपॉइंट किया है तो। आपने कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उन सब का भी डिटेल दो, नाम और एड्रेस दो। ठीक है, ए डिक्लेरेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट विच विल बी साइंड बाय द प्रमोटर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द प्रमोटर। एक डिक्लेरेशन दो सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, उसमें क्या क्या लिखना है, पहले तो ये लिखना है भाई लीगल टाइटल है मेरे पास जो मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लैंड जो है उस पर कोई मॉर्टगेज वगैरह नहीं है, ठीक है, या अगर कोई मॉर्टगेजेस वगैरह है तो वो भी चीज बताओ, टाइम पीरियड जितने में मैं कंप्लीट करूंगा ये बताओ, और जो 70% जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 70% जो अमाउंट मिलेगा मेरे को अलॉटेड से, वो मैं एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखूंगा और उससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की और लैंड कॉस्ट की ही पेमेंट होगी, ये नहीं कि उससे को आप अपने लैंड रोवर खरीद लो। ठीक है, तो 70% आपका एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा, उसको कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, इसका मतलब 30% आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। The promoter shall withdraw the amounts from the separate account to cover the cost of the project in proportion to the percentage of completion of the project। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वैसे वैसे आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों के लिए भी एक सुविधा आ गई, जो अकाउंट आप विड्रॉ करोगे वो आप इंजीनियर से सर्टिफाइड कराओगे, आर्किटेक्ट से और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड कराओगे कि जो विड्रॉल है वो परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से ही है। ठीक, ऑडिट कराना आपको 6 महीने में आफ्टर द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। ठीक है, एंड इट शैल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट कि जो अमाउंट कलेक्टेड है इट हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, और विड्रॉल जो है इट हैज बीन इन कंप्लायंस। ठीक है, ये सर्टिफिकेट देना है। शेड्यूल्ड बैंक क्या है, शेड्यूल्ड बैंक ये है बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और उसके अलावा क्या बताना आपको, दैट ही शैल टेक ऑल दी पेंडिंग अप्रूवल्स ऑन टाइम फ्रॉम दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। भाई सारी अप्रूवल तो शुरू में नहीं ली होंगी ना, बाद में जो अप्रूवल लेनी होगी वो भी बताएगा कि भाई मैं भी जो है वो टाइम टू टाइम सारे अप्रूवल लूंगा। ठीक है, दैट ही हैज फर्निश्ड सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, सच अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अथॉरिटी क्या करेगी, अथॉरिटी मतलब रेरा, रेरा एक वेबसाइट ऑपरेशनलाइज करेगी, वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम for submitting applications for registration of projects within a period of 1 year from the date of its establishment। तो जब ये रेरा एस्टेब्लिश हुआ है उसके 1 साल के अंदर ये वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम ऑपरेशनलाइज करेंगे फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सेक्शन 5 का बात करता है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, अथॉरिटी 30 दिन के अंदर एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, लॉगिन आईडी रहेगा, पासवर्ड रहेगा।
टू द एप्लीकेंट फॉर एक्सेसिंग द वेबसाइट ऑफ द अथॉरिटी, और वो अपना वेब पेज बना सकता है, एंड टू फिल देयर इन द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रपोज प्रोजेक्ट। ठीक है, या तो 30 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट कर लेगी, उसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी। ठीक है, यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड दे देगी ताकि वो अपना वेब पेज बनाए, उस पर सारी अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डाले, या फिर रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करेगी तो रीजन रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग। ठीक है, हाउएवर नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस द, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिलेगी। ठीक है, अगर 30 दिन में अथॉरिटी रजिस्टर नहीं करती तो ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, ये है इसमें, मतलब ये एक अथॉरिटी के ऊपर भी डंडा है कि भाई आप जो है रजिस्ट्रेशन करो। ठीक है, एंड द अथॉरिटी शैल विद इन 7 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सेट 30 days प्रोवाइड ए रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू द प्रमोटर। ठीक है, तो ये है, आगे देखते हैं। The registration granted under this section shall be valid for a period declared by the promoter under subclause C of clause L of subsection 2 of section, मतलब कंप्लीशन के लिए उसने अपना एक पीरियड दिया होगा। जैसे मान लो उसने कहा भाई मैं 5 साल में कंप्लीट करूंगा, तो ये सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन ये 5 साल तक वैलिड रहेगा। 5 साल के बाद अगर एक्सटेंड करता है तो आपको दोबारा फीस देनी है। ठीक है, अथॉरिटी शैल विद इन 30 days ग्रांट रजिस्ट्रेशन, और उसको रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी वगैरह दे देगी। अगर रिजेक्ट करेगी तो रीजन रिकॉर्ड करेगी और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। ठीक है, और 30 दिन के अंदर ग्रांट नहीं कर पाती, ठीक है भाई, ना रिजेक्ट भी नहीं करती और ग्रांट भी नहीं कर पाती, तो डीम्ड मान लिया जाएगा कि हो गया। ठीक है, और 7 दिन के अंदर फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी दे दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 11 आता है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर की क्या ड्यूटी है? प्रमोटर को लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया, वो क्या करेगा? वो ये सारी डिटेल्स इसमें अपलोड करेगा। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्वार्टरली अप टू डेट करेगा, लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स एज द केस में बी बुक्ड, भाई कितने बुकिंग हो गई, क्वार्टरली अप टू डेट करेगा। लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैरेजेस बुक्ड, क्वार्टरली अप टू डेट द list of approvals taken and the approvals which are pending subsequent to commencement certificate, quarterly up to date status of the project, और जो भी other documents which may be prescribed by the authority, or the advertisement or prospectus issued or published by the promoter shall mention prominently the website address of the authority। ठीक है, तो रेरा की जो अथॉरिटी की वेबसाइट है उसको भी अपने प्रोस्पेक्टस में या एडवर्टाइजमेंट में प्रोमिनेंटली मेंशन करेगा कि जहां पर उसके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, और जो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो भी बताएगा। ठीक है, promoter at the time of booking and issue of allotment letter shall be responsible to make available to the lottee the following information। उसको सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, ये सारी चीजें उसको आपने प्रोवाइड करानी है, और स्टेज वाइज टाइम शेड्यूल देना है कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग द प्रोविजन फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर, सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर ही आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। प्रमोटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड। ठीक है, ये तो थ्योरी है, कोई खास बात नहीं है। अब ये जो है प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन जहां तक अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, मान लो कोई बीम में कोई क्रैक आ जाए, ठीक है ना, वो क्या रहेगा? इट शैल कंटिन्यू इवन आफ्टर द कन्वेयंस डीड ऑफ ऑल द अपार्टमेंट्स इज एक्सिक्यूटेड। ठीक है, तो बाद में भी उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, अदरवाइज उसकी जिम्मेदारी कब तक है? कन्वेयंस डेट तक। ठीक है, be responsible to obtain the completion certificate or occupancy certificate or both as applicable from the relevant competent authority। ठीक है, वो completion certificate या occupancy certificate वो लेगा competent authority से। ठीक है, अगर कोई लीज सर्टिफिकेट लेना है उसको, मान लो लीज होल्ड लैंड है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें वो he is responsible। He will be responsible for providing and maintaining the essential services on reasonable charges till the taking over of the maintenance of the project by the association of the allottees। भाई प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट बनने के बाद में फिर जो अलॉटीज है वो अपनी एक एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जब तक एसोसिएशन फॉर्म नहीं होती तब तक उसको जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो रीजनेबल चार्जेस पे देगा। ठीक है, ही विल इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन और सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ अलॉटीज और ए फेडरेशन ऑफ द सेम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो है
It shall be formed within a period of 3 months of the majority of the allottees having booked their plot or apartment as the case may be. तो 3 महीने के अंदर जब मेजर बुकिंग हो गई, ठीक है ना, मान लो 90% बुकिंग हो गई, उसके 3 महीने के अंदर आपको ये बना देनी है, आपको उसमें हेल्प करनी है. ये विल इनेबल. आगे देखते हैं. He will execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building as the case may be in favor of the allottee, along with the undivided proportionate title in the common areas to the association. जो undivided area है उसका टाइटल किसको देगा? एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को, ठीक है. और कन्वेंस डीड किसके नाम रजिस्टर कराएगा? अलॉटीज के नाम, ठीक. और जब तक फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो जाता, जो भी आउटगोइंग्स है ही विल पे, ठीक है. मान लो बिजली का बिल है, कुछ भी है, एज द केस में बी, which he has collected from the allottees for the payment of outgoing, including land cost, ground rent, municipal, local taxes, charges for water, electricity, maintenance charges, ठीक है, including mortgage loan and interest on mortgages or other encumbrances. तो ये सारे के लिए he is liable, he will pay all outgoings, ठीक है. स्लाइड रुक गई है. रुक गई है जी. कहाँ पर है जी? एक्सिक्यूट पे है ना. ये कहाँ से शुरू हो रही है? एक्सिक्यूट से शुरू हो रही है. कहाँ? ई लास्ट में ई है सर, इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन. ये एक्सिक्यूट वाली नहीं चल रही. अब आ रही है एक्सिक्यूट वाली? नहीं आ रही सर. मैं दोबारा इसको स्टॉप शेयर करके ना रिज्यूम शेयर कर देता हूँ. कई बार हो जाता है, रुक जाता है. यहाँ पर थे हम, है ना. ठीक है जी. तो अब मान लो वो प्रमोटर नहीं दे पाता, मान लो लोगों से पैसे ले लिए उसने, ठीक है ना, ऑफ ऑल द आउटगोइंग कलेक्टेड बाय हिम फ्रॉम द अलॉटीज, ठीक है ना. तो उस केस में ही विल बी कंटिन्यू टू लायबल इवन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, जिन पर वो पेएबल है, और उसके लिए वो लीगल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट में शुरू कर सकते हैं. अब उसने आफ्टर एक्सिक्यूट्स एन एग्रीमेंट फॉर सेल फॉर एनी अपार्टमेंट, ठीक है, एज अ केस में भी नॉट मॉर्गेज और क्रिएट ए चार्ज ऑन सच अपार्टमेंट, ठीक है. तो अब अगर उसने एग्रीमेंट फॉर सेल कर लिया तो उसके बाद में कोई मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है. इट शैल नॉट अफेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द अलॉटी हु हैज टेकन और एग्रीड टू टेक सच अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग एज द केस में भी, ठीक है. और प्रोमोटर जो है वो अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट फॉर सेल, क्योंकि एग्रीमेंट फॉर सेल उसको पहले ही दे देना है जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था. अलॉटमेंट लेटर का फॉर्मेट देगा, एग्रीमेंट फॉर सेल का फॉर्मेट देगा, कन्वेंस डीड का फॉर्मेट देगा, सब, ठीक है ना. तो उस वहां पर जो लिखा हुआ उसी टर्म्स के हिसाब से अगर कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द अलॉटी में अप्रोच द अथॉरिटी फॉर रिलीफ इफ ही इज एग्रीड बाय सच कैंसिलेशन, ठीक है. तो अलॉटी जो है वो फिर रेरा के पास जा सकता है. एंड प्रोमोटर शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन all such other details as may be specified from time to time by regulations made by the authority, ठीक है जी. सेक्शन 7 अब चल रही है ना बाबर जी? अब चल रही होगी, वो एक ग्रुप गई होगी किसी वजह से. ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेक्शन 17 चल रही है सर. हाँ जी. ट्रांसफर ऑफ टाइटल क्या कहता है? ये कहता है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ टाइटल. जो प्रमोटर है ही विल एक्सिक्यूट ए रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटी, ठीक है. कन्वेंस डीड अलॉटीज का नाम, कॉमन एरिया एसोसिएशन के नाम, ठीक है. और फिर फिजिकल पोजीशन दे देगा अलॉटीज और कॉमन एरिया का पोजीशन दे देगा एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के नाम, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी लोकल लॉ, कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ द अलॉटी और द एसोसिएशन ऑफ द अलॉटीज और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मे बी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कैरिड आउट बाय द प्रोमोटर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 महीने के अंदर उसको जो है ये कन्वेंस डीड करवा के देनी है, ठीक है. उसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एंड हैंडिंग ओवर फिजिकल पोजीशन टू द अलॉटीज, जब से उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में क्या है? वो बिजली, पानी और सैनिटेशन की सुविधा पे मिल जाता है. तो उसके 3 महीने के अंदर उसने जो है कन्वेंस डीड करवा के देनी है. After obtaining the occupancy certificate and handing over physical possession to the allottees
इट शेल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर टू हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ये किसको दे देगा? एसोसिएशन ऑफ अलॉटेज को, क्योंकि ये प्रोमोटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसफर से रिलेटेड है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। In the absence of any local law, the promoter shall hand over the necessary document। ये एसोसिएशन ऑफ अलॉटेज को दे देगा within 30 days after obtaining the completion certificate। सेक्शन 18 फिर बात करता है रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपनसेशन की। इसमें क्या है? दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपनसेशन। अगर प्रोमोटर पोजीशन नहीं दे पाता, इफ ही फेल्स टू कंप्लीट और इज अनेबल टू गिव पोजीशन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ हिज बिजनेस, ऑन अकाउंट ऑफ सस्पेंशन या रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ही शैल बी लायबल ऑन डिमांड टू द अलॉटीज इन केस द अलॉटीज विशेस टू विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ठीक है, अलॉटीज कई बार क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमें दूसरे प्रोजेक्ट में प्लॉट दे दो, ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा है कि इन केस द अलॉटी विशेस टू विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर रेमेडी अवेलेबल to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building as the case may be with interest at such rate। ठीक है, तो ये चीज इसमें दी गई है कि भाई उसको टाइम पे अपना जो है देना है, और नहीं तो फिर उसको वापस करना है पैसा विद इंटरेस्ट। लेकिन अगर अलॉटी उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ नहीं करना चाहता तो ही शेल बी पेड बाय द प्रोमोटर इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले टिल द हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, और अगर मान लो प्रोमोटर शेल कंपनसेट द अलॉटीज इन केस ऑफ एनी लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू एनी डिफेक्ट। ठीक है, कोई मान लो लैंड के टाइटल में डिफेक्ट है ऑन विच द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड, ठीक है, एंड द क्लेम फॉर कंपनसेशन शेल नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, तो इस केस में क्या, अगर कोई डिफेक्टिव टाइटल आ गया तो डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर कोई लैंड डेवलप कर ली, उसका टाइटल ही डिफेक्टिव था, ठीक है, तो अलॉटीज को कंपेंसेशन देगा, और ये जो कंपेंसेशन है इट विल नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशन, तो लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। इफ द प्रोमोटर फेल्स टू डिस्चार्ज एनी अदर ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड ऑन हिम अंडर दिस एक्ट or the rules or regulations made thereunder or in accordance with the terms, he shall be liable to pay such compensation in the manner as provided under this act। ठीक है, तो ये सेक्शन 18 कंपेंसेशन की बात करता है कि अगर टाइटल डिफेक्टिव हो जाए तो लिमिटेशन एक्ट भी नहीं लगेगा। अब या तो वो अलॉटी को पैसे वापस करेगा, या कई बार क्या होता है अलॉटी कहता है जी मेरे को नहीं निकलना इस प्रोजेक्ट से, ठीक है ना, अगर वो तो उसको फिर इंटरेस्ट दे देगा फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले। ठीक है, सेक्शन 20 बात करता है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी, और तो इसमें ये है कि 1 ईयर में इनको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रियल एस्टेट अथॉरिटी को जो है एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, दो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर के भी एक अथॉरिटी हो सकती है, क्योंकि स्टेट वाइज है रेरा, ठीक है ना, हर स्टेट के अलग है, यूपी रेरा, इस तरह से। Appropriate government may, if it deems fit, establish more than one authority in a state or union territory। एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, या दो से ज्यादा जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को मिला करके भी एक हो सकती है। ठीक है, दोनों तरह से बन सकती है। और जब तक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनती तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर डेजिग्नेट एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी और एनी ऑफिसर preferably the secretary of the department dealing with housing as the regulatory authority। ठीक है, तो जब ये रेगुलेटरी, ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, जब रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी तो जो भी केसेस हैं जो अथॉरिटी के पास है वो सारे इस रेगुलेटरी अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी, ये सब। ठीक है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। सेक्शन 23 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर। एक चेयरपर्सन होगा, 2 मेंबर होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, द चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years। नॉट एक्सीडिंग 5 years लिखा है, क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछ लेता है 5 years, नॉट एक्सीडिंग 5 years, मोर देन 5 years, क्या होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन देयर ऑफिस और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है
नॉट बी एलिजिबल, क्योंकि ज्यादातर जगह पर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ री एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज चेयरपर्सन और मेंबर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड सेटिस्फाइड कि भाई उसका कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट नहीं है, या और भी जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वगैरह वाली कंडीशंस है वो मेंबर पर भी और चेयरपर्सन पर भी लागू होती है, ठीक है। सेक्शन 31 बात करता है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स विद द अथॉरिटी और एडजुडिकेशन ऑफिसर, ठीक है, कि भाई कोई भी आदमी जो है इनके पास कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है, और कोई भी जो वॉलंटरी एसोसिएशन है वो भी फाइल कर सकती है, ठीक है ना। The person shall include the association of allottees or any voluntary consumer association registered under any law for the time being in force, ठीक है। तो कोई पर्सन भी और कोई एसोसिएशन भी आपके यहाँ पर रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकती है जो भी एग्रीड है, ठीक है। आगे देखते हैं फॉर्म मैनर ये प्रेस्क्राइब किया जाएगा। फिर फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी क्या है, फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन करती है, किनका, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का, रियल एस्टेट एजेंट्स का, ठीक है। फिर अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करती है फॉर पब्लिक व्यूइंग ऑफ ऑल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, भाई जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन दिया गया है, और विद सच डिटेल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। तो जो एप्लीकेशन के टाइम पे प्रोमोटर ने जो डिटेल्स दी थी वो भी सारी चीजें फॉर पब्लिक व्यूइंग ये सारी मेंटेन करना रेरा का काम है। फिर डेटाबेस मेंटेन करती है फॉर पब्लिक व्यूइंग एंड एंटर द नेम्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रोमोटर्स एज डिफॉल्टर्स। तो जो भी डिफॉल्टर हैं उनकी भी पूरी डिटेल्स रेरा की वेबसाइट पर है, इंक्लूडिंग द प्रोजेक्ट डिटेल, रजिस्ट्रेशन, कहाँ कब रिवोक किया गया, पेनलाइज क्या किया गया, ये सब चीज, ठीक है। फिर जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनकी भी सारी डिटेल इस पर है, ठीक है। And to fix through regulations for each area under its jurisdiction, the standard fees to be levied on the allottees or the promoter or the real estate agent as may be। तो क्या, तो उन पे कुछ फीस लगा सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड फीस, भाई आपने एक्सेस करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है उस हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं। To ensure compliance of the obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents under this act and the rules and regulations made thereunder, ठीक है। जो भी ऑब्लिगेशंस हैं जो प्रोमोटर के, अलॉटीज के, रियल एस्टेट एजेंट्स के, उनका कंप्लायंस इंश्योर करना किसका काम है, रेरा का, ठीक है। टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स रेगुलेशंस और ऑर्डर्स और डायरेक्शंस मेड, ठीक है। तो अदरवाइज क्या है, पनिशमेंट्स भी हैं इसमें, कि अगर रेरा ने कोई ऑर्डर किया नहीं मानता तो क्या है, टू परफॉर्म सच अदर फंक्शन। तो ये बेसिकली रेरा के फंक्शन है। सेक्शन 34 में कोई इंटरिम ऑर्डर भी इशू कर सकती है, ठीक है ना, भाई किसी ने कोई डिफॉल्ट कमिट किया है तो उस केस में कोई इंटरिम ऑर्डर भी इशू कर सकती है, उसमें रिस्ट्रेन कर सकती है किसी प्रोमोटर को, अलॉटी को या रियल एस्टेट एजेंट। भाई ये तीन ही इसके कंट्रोल में है, प्रोमोटर, अलॉटी और रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि भाई अब आगे आप कोई कार्रवाई मत करना, ठीक है, तो उनको रिस्ट्रेन कर सकती है, इंटरिम ऑर्डर इशू कर सकते हैं रेरा, अगर उनको लगता है कि किसी भी पार्टी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है। 37 में डायरेक्शन इशू कर सकती है, किनको, वही प्रोमोटर, अलॉटी और रियल एस्टेट एजेंट्स। फिर पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है, पेनल्टी, इंटरेस्ट लगा सकती है, और नेचुरली दे विल फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। और वेयर एन इशू इज रेज्ड रिलेटिंग टू एन एग्रीमेंट, एक्शन, ओमिशन, प्रैक्टिस और प्रोसीजर, तो उस केस में ये होगा, इट हैज एन appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project, ठीक है। तो कोशिश करेंगे भाई कोई इस टाइप से डिस्टॉर्शन या रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं हो। which is the effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, and the authority may so move to make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India, ठीक है। फिर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और कंपेंसेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, सेक्शन 40। सेक्शन 40 कहता है कि भाई किसी पर लगा तो दिया, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, पेनल्टी लगा दी, कंपेंसेशन लगा दिया, रियल एस्टेट एजेंट है, प्रोमोटर है, अलॉटी है, ठीक है। मान लो वो नहीं देता तो क्या करेंगे, नहीं देता
तो ये है, इट शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम सच प्रोमोटर और लॉटियर इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड एज एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे इनकम टैक्स में लिखा रहता है एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, मुनादी करवा के उसके घर पे नोटिस चिपकाएंगे और उसका जो भी कुछ है उसको अटैच कर लेंगे, ये होता है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। If any adjudicating officer or the regulatory authority or the appellate tribunal केस में भी issues any order, ठीक है ना, तो उस ऑर्डर का एनफोर्समेंट होगा। फिर एक सेंट्रली एडवाइजरी काउंसिल है इसमें, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। दिस सेक्शन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन नोटिफिकेशन में सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बना सकती है। अब उसका जो इंचार्ज कौन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा, जो मिनिस्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डीलिंग विद हाउसिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का मिनिस्टर है वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। ठीक है, फिर उसमें रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट वगैरह से। ठीक है, 10 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे और उसमें डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को देखा जाएगा। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के फंक्शंस क्या होंगे, दे विल बी एडवाइजिंग एंड रिकमेंडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी पॉलिसी डिसीजंस वगैरह है उसके ऊपर। अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है, जो इसमें एक तो रेरा अथॉरिटी है, फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल है, एपिलेट ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट है। ठीक है, तो जो भी एपिलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन से एग्रीव्ड है वो हाई कोर्ट को अपील कर सकता है विद ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल टू हिम। ठीक है, और हाई कोर्ट में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट 60 days अगर कोई सफिशिएंट रीजन है तो। ठीक है, एंड नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर मेड बाय द एपिलेट ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ये इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट से कोई डिसीजन हुआ है तो वो फिर हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक, फिर ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स क्या है, ये है सेक्शन 59 में। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज डिटरमिन्ड बाय द अथॉरिटी। अगर प्रोमोटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है सेक्शन 3 का तो, ठीक है, या अगर प्रोमोटर इफ ही डज नॉट कंप्लाई विद द ऑर्डर्स, सैंक्शंस, डिसीजंस वगैरह, तो उस केस में 3 साल तक की सजा है या फाइन है अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल प्रोजेक्ट। अगर ऑफेंस किसी कंपनी ने कमिट किया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी और जो उसका ऑफिसर है दोनों लायबल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये दिखा पाता है भाई मेरे कोई गलती नहीं थी तो फिर उस ऑफिसर को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, बट नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी एंड इज प्रूव्ड तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि भाई जो ऑफेंस है उसमें डायरेक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर की वजह से, तो वो भी गिल्टी मान लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में भी पनिशमेंट होगी। कंपनी का क्या मतलब है, कंपनी का मतलब फर्म भी इसमें इंक्लूडेड है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूडेड है, और डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर इन रिलेशन टू फर्म मींस पार्टनर। ठीक है, फिर कंपाउंडिंग की भी बात है इसमें कि ये है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो अगर कोई पर्सन इज पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, तो पनिशमेंट जो है कंपाउंड भी हो सकती है। ठीक है, उसके बदले में फाइन भी दिया जा सकता है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चाहे जो मर्जी लिखा हो। ठीक है, हाउएवर द सम प्रेस्क्राइब्ड शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फाइन व्हिच मे बी इम्पोज्ड फॉर द ऑफेंस सो कंपाउंडेड। ठीक है, बस आगे पूछा क्या, पावर्स टू एडजुडिकेट सेक्शन 71, ये क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग कंपेंसेशन, इस केस में क्या होगा, अथॉरिटी शैल अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वन और मोर जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, अगर कोई मैटर पहले आप इससे पहले कंज्यूमर फोरम में केस जाया करते थे, ठीक है ना, तो ये कि यहाँ आपको परमिशन मिल जाएगी उस फोरम से या कमीशन से, आप विड्रॉ कर लो और यहाँ पर ले आओ केस को रेरा में। ठीक है,
where an application could not be disposed of within the said period of 60 days, the adjudicating officer shall record his reasons in writing for not disposing of the application within that period. ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन है फॉर एडजस्टिंग कंपनसेशन, उसके लिए पीरियड दिया गया है कि भाई 60 दिन के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करनी है, और नहीं बताओगे तो आपको रीजन रिकॉर्ड करने हैं. ठीक है, और आप किसी बंदे को बुला सकते हो, ये सब कर सकते हो. ठीक है ना, रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हो, वो सब जैसा लिखा होता है सिविल प्रोसीजर कोड में वही है. बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, सिविल कोड की कोई ज्यूरिसडिक्शन इसमें नहीं है. ठीक है, रेरा, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट. हाई कोर्ट में भी अगर आपके राजीनामा से कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल में फैसला हुआ है तो हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते. पावर टू मेक रेगुलेशंस, ये फिर गवर्नमेंट ये है कि रेगुलेशंस बना सकती है. ये लेइंग ऑफ रूल्स, ये इसमें खास बात नहीं. जनरली एप्लीकेशन ऑफ द लास्ट वार्ड एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. ठीक है, तो इसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट है. नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, जो मेंबर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज ऑफ अथॉरिटी हैं, इफ दे हैव टेकन एनी एक्शन इन गुड फेथ तो उनको इम्यूनिटी ग्रांटेड है. इतना ही है ये रेरा. ठीक है जी, तो इसके बाद में बाकी फिर कल करते हैं. एमएसएमई में कल टाइम तो हो ही गया है ना, क्योंकि एमएसएमई में टाइम लगेगा. एमएसएमई कल कर लेंगे. और परसों फिर हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के लिए 2 एडवोकेट्स को बुलाया, तो वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में डील करेंगे परसों. ठीक है, कल हम एमएसएमई करते हैं और एक आधा एक्ट कोई और ले लेंगे साथ में. दो तीन क्वेश्चन है. हाँ पूछिए आप पूछिए, कहें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल पूछिए सर, बिल्कुल.